day of nominations, Assam's Nalbari witnessed large crowds, cheers and campaigning ahead of the state elections set for 9th April. The town rose to welcome sitting minister and two-time MLA from the seat, Jayanta Malla Barua, as he returns to contest from the constituency. The Nalbari Assembly constituency is one of the 126 Vidhan Sabha constituencies of Assam. The town serves as the headquarters of the Nalbari district and is part of the Barpeta Lok Sabha constituency. Originally established in 1962, Nalbari has participated in 14 assembly elections so far. As per the last census, Nalbari boasts a population of 7.71 lakh. Over 89% of the population is rural, with the remaining 10.72% falling in the urban category. It has 7.80% SC population, while only 3.03% of the population comes under the ST category. 69.11% of the population is Hindu and 30.56% of the population is of the Muslim faith. According to the latest Special Intensive Revision exercise, Nalbari's registered voters stand at 2 lakh, up from 1.95 lakh in 2024. Nalbari consistently records turnout above 80% since 2014, with an 82.42% voter turnout in the 2021 Assembly elections. The history of Nalbari dates back to many centuries, with Kautilya's Arthashastra mentioning the import of various economic products from the town. The pulse of the town comes alive during the Ras Mahotsav, being organized in the Nalbari district since the early 20th century. The event is centered at Nalbari's iconic Hari Mandir, which hosts the 11 to 15-day festival. Jayanta Malla Barua, currently serving as the Public Health, Engineering and Housing and Urban Affairs Minister in the Government of Assam, is fondly called Chief Minister Himanta Biswa Sarma's troubleshooter. A two-time member of the Assam Legislative Assembly, Barua was a member of the Indian National Congress before joining the Bharatiya Janata Party in 2015. His extensive political portfolio also boasts of a stint as chairman of the Assam Tourism Corporation, during which he drew attention by holding the Filmfare Award show in Assam, the first time the show was held outside Mumbai in its 65-year history. The battle for Nalbari is shaping up to be a high-stakes face-off between the BJP and Congress, as former Congressman Jayanta Malla Barua faces off against ex-BJP member Ashok Sharma. The seat has shuttled between the two since 2011, with Sharma defecting from the BJP in 2024 after being denied re-nomination to the seat in 2021 in favor of Barua, who went on to win. Despite all signs pointing to an intense showdown, Barua and the BJP are going in with an edge, considering Barua's position as cabinet minister and the Bharatiya Janata Party's dominance in the region. The last assembly election saw Barua raking in 58.84% of the votes as opposed to 31.43% for the INC's Pradyut Kumar Bhuyan. In this episode of The Road Stop, Team NewsX heads to Nalbari to understand the masses' mood ahead of the election battle. We are here in Nalbari for this episode of The Road Stop with candidate Jayanta Malla Barua. Jayanta Malla Barua is Minister of Assam Cabinet Minister, and he is also from Nalbari, one of the most historic towns of Assam. Currently we are in front of another historic place, which is the Hari Mandir. Hari Mandir is a very renowned religious institution in Lower Assam town of Nalbari, and you can see here that Jayanta Malla Barua has come early morning to take blessings from the temple as he goes on to file his nomination at the Nalbari DC office. We are going to track his entire day, and also we are going to find out what places he visits. But
the main attention for Nalbari this time is Jayanta Malla Borua. We are also going to find out the mood of the public as far as Nalbari is concerned, and what do people think about the issues at large at Nalbari at the grassroots level. Ahead of filing his nominations for the assembly election, Assam Cabinet Minister Jayanta Malla Barua offers prayers at Nalbari's landmark Hari Mandir. Excitement among locals is at a fever pitch as they lend their support. जयंत मल्ला आने के बाद नलबाड़ी का जो नया दौर शुरू हो रहा है वो तो ट्रिमेंडस। पहले नलबाड़ी का एक वर्षा आने के बाद नलबाड़ी में कोई लोग इधर आना जाना बंद हो जाता था, मगर अभी इतना सुंदर हो गया तो जवाब नहीं है। इसलिए जयंत मल्ला बरुआ वो कार्यकाल में जो हुआ है वो तो पहले कभी नहीं हुआ। 70 इयर्स के बाद अभी नलबाड़ी में विगत 5 साल में जितना उन्नयन हुआ है पहले कोई नहीं हुआ था। ऑपोजिशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम उनके पास बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, प्राक्तन एमएलए है, उनका बहुत बड़ा चांस। आपको क्या लगता है इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है जयंत मल्ल जो? कौन कथा है? नलबाड़ी आदमी तो ऐसा नहीं कथा है। बाहर का आदमी कहने से क्या होगा? नलबाड़ी का कोई आदमी ऑपोजिशन का कोई बात नहीं कर रहा है। कौन ऑपोजिशन का एमएलए है? वो तो पहले एमएलए था, उसका समय में कुछ नहीं हुआ है, इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। 2-3 साल ये आदमी हाथ में लेकर के चलता है और राज्य का ये जनता का कुछ नहीं किया है। अभी जो दौर चल रहा है ये ट्रिमेंडस दौर है। तो कॉन्फिडेंट है पूरा? फुल कॉन्फिडेंट हम लोग नलबाड़ी का आदमी। रिजल्ट पॉजिटिव होगा? रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो हो गया है, पहले हो चुका है। Nearly 50,000 supporters gathered at Gordha Field, raising chants of Himanta Jayanta Zindabad in a high decibel start to what is shaping up to be a fiercely contested battle. We are present at the Gordon Field in Nalbari. There is a sea of people coming here to attend the campaign trail of Assam Minister Jayanta Malla Borua. You can see the number of people here. It's a huge gathering of people who are coming here since morning waiting to meet the MLA of Nalbari, and Jayanta Malla Borua being a tall brand leader from Lower Assam, he has a sizable following. We are also waiting for him to come back from the nomination as he attends this mega rally. We are also going to speak to him regarding his journey and how confident he feels. But if you see the gallery, it's a huge rally of people coming here. Before even the MLA coming here, they have been waiting here to get a glimpse of Jayanta Malla Borua, and that is what the ground mood currently here in Nalbari. You can see here women in large numbers, and also they are holding the placards of Alliance AGP as well, because NDA is contesting together. So it's a sizable people. You can see the placards of Himanta Biswa Sharma and PM Modi. They are being at display here. Himanta Biswa Sharma is a very popular figure in Nalbari as well as the Prime Minister, and that has been a big factor as far as the BJP's campaign trail is concerned. It has centered around PM Modi and Himanta Biswa Sharma, and also the ground popularity of Jayanta Malla Borua is something which has attracted the huge gathering of people as we are witnessing on the camera. You can see here the kind of outpouring support which shows you the significance of this crucial constituency in Nalbari, which is crucial also in the sense that the Congress has placed former BJP MLA Ashok Sharma, who was the MLA here from 2016 to 2021. So that is also going to be an interesting contest which we are witnessing in this hot seat. To understand the key issues on which the election battle would be contested, we spoke with the people of Tarapur about the upcoming poll battle. मौजूद है हम अभी हरि मंदिर में और लोकल से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं नलबाड़ी की क्या स्थिति है। पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम? सुरभि दास है। आप नलबाड़ी की हैं? मैं नलबाड़ी की ही हूँ। यहाँ पे अभी नलबाड़ी में
क्या क्या इश्यूज है जो इम्पोर्टेंट है इस इलेक्शन के लिए, और आपको क्या लगता है कि ये इशू का जो प्रॉब्लम है वो इस सरकार कैसे इसको सॉल्व करने में सफल हुआ है? इस समय इसलिए सफल हुआ है क्योंकि सब तो ये सरकार ही कर रहा है, कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए हम बीजेपी को ही वोट दूंगा, बीजेपी को ही जिताऊंगा। आप बीजेपी को सपोर्टर करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं आप उनके साथ बात करते हैं, आम लोग जो पार्टी के साथ जुड़ा नहीं है उनका क्या इस टाइम क्या सोच है? ये क्या वो बीजेपी की तरफ है कि कांग्रेस की तरफ है? बीजेपी तरफ ही है। बीजेपी की तरफ है। बीजेपी। क्यों, कारण क्या है? कारण मैंने लेकिन डेवलप बहुत किया है, रास्ता अभी नलबारी बहुत अलग हो गया। पहले नौलबारी में क्या कैसा था, मतलब बताइए थोड़ा। हालत बहुत खराब था पहले। अभी आजकल जैसे बच्चों के लिए, जैसे पहले सरकारी स्कूल में आप लोग का एडमिशन करवाने जाए तो पैसा चाहिए था, आजकल ऐसा नहीं है। जैसे डिग्री में गया तो मम्मी लोग को पढ़ाने के लिए हर बार सोचना पड़ता था कि पापा लोग हाजिरा कर रहे, पैसा कहाँ से लाए। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। अभी महीना आसानी दिया है, बच्चा लोग को पैसा भेजा है, हर महीने अकाउंट में पैसा आता है बच्चों को। तो बहुत चीज़ ऐसे डेवलपमेंट, जैसे मेरे बच्चा लोग स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में के लिए आपके खैरत स्टेडियम भी आया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम में है। तो मेरे दोनों बेटी स्पोर्ट्स में है, नेशनल खेल के भी आया दोनों बेटी। तो अभी स्पोर्ट्स के लिए हम लोग को टेंशन नहीं है। पहले था कहाँ खेलेंगे, कहाँ क्या करें, लेकिन अभी आजकल दौड़ के लिए खोरा तोली बना दिया, स्विमिंग के लिए बही बना दिया, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा बनाया। चीज़ आ रहा है यहाँ पे। दीदी, आप नौलबारी की है, बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही है, क्या चेंज आया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, क्या नया आया है? मैं 5 साल की बात करूंगी। 5 साल में इतना डेवलप किया हम लोग का मिनिस्टर जयंत मल्ल जी ने, जो हम लोग, मेरे उम्र 50 साल की है तो हम कभी नहीं देखा इतना उन्नयन, मतलब इतना उन्नति होते हुए। अभी हम लोग का देखिए ना, रास्ता घाट कितना अच्छा हो गया। हम लोग का जो डीसी कोर्ट का ज़रूरत था, डीसी कोर्ट था, एक स्टेडियम का ज़रूरत था, कॉन्वर्सेशन सेंटर का ज़रूरत था, वो भी हो गया। और जो हम लोग का बोरपुरा जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर कितना एक्सीडेंट होता था पहले, अभी वो भी एक्सीडेंट बंद हो गया, फ्लाईओवर बन गया। जयंत मल्ल जी जितना बताओ उतना कम है, मतलब हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ, काम बहुत हो रहा है। आपसे एक बात और पूछेंगे, यहाँ पे कांग्रेस कह रहा है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इनका चांस है। आप तो नौलबारी का लोग, चांस नहीं है कोई। मेरा अभी नया बेटी अभी इस बार फांस देगी, लेकिन वो भी बीजेपी में है। नहीं, हम लोग को शांति नहीं है कांग्रेस का। मक्खी के जैसा उठा के फेंकेंगे हम लोग उन लोग को। दूध में जैसे मक्खी नहीं भरता है, ऐसे कांग्रेस को उठा के फेंक दूंगी। लेकिन वो तो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, बड़ा लीडर है। नहीं, एमएलए रहने से क्या होगा? अभी नहीं, अभी शांति नहीं है। मतलब जयंत मल्ल बोरा दांगोरिया ये शांत है, उनका ये दादा जितना किया है ना कोई नहीं कर सकता है। बहुत लोकेली काम हुआ है, मतलब भगवान है वो। अभी हम लोग लोकेली काम, हाँ लोकेली काम हुआ है, बहुत सारा चीज किया उन्होंने। या आपका जात पात नहीं है, बहुत सारा सबको देखा है, सबको सामान लेके चलाए वो, सामान की तरह सामान से लेकर गया। अभी यूथ के लिए क्या, मतलब क्या माइंडसेट है यूथ में? यूथ अभी एजुकेशन, स्पोर्ट्स आपने कहा, तो उसके ऊपर यूथ का क्या माइंडसेट है? यूथ का माइंडसेट मतलब अभी बच्चा लोग को जैसे कोई लाइन पढ़ना चाहते हैं तो उस चीज को मतलब दादा आगे, हाँ फैसिलिटी है। अभी बहुत सारा चीज किया है, अभी बोलने से नहीं होता। आप लोग जाके देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी खोला है वहाँ जाइए, अभी जैसे खोरा तोली में खोला है तो वहाँ जाइए, आप लोग देख के आइए, तब पता चलेंगे आप लोगों को। The last stop of the vibrant road show was the Nalbari Gate. The atmosphere remained energetic, reflecting the growing momentum as the state prepares to head to polls. After the final crescendo, the man of the moment himself, we got to speak to Assam Minister Jayant Malla Barua right after he filed his nomination. जुड़े हुए हैं हम अभी असम के मंत्री जयंत मल्ल बोरा उनके घर में नलबारी में। आज नलबारी में एक बहुत बड़ा समागम हुआ था, जहाँ पे नलबारी के जो विख्यात हरि मंदिर है वहाँ से वो डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन देने के लिए गए थे। सर, आज हमने नलबारी में देखा आपके जहाँ पे होम कंस्टिट्यूंसी में कि हज़ारों से भी अधिक लोग, महिला ज़्यादा हम देख रहे हैं, आपको एकम्पेनी करके डीसी ऑफिस तक ले गए थे। ये एक बहुत बड़ा समागम आज हुआ था, और ये जो ओवरऑल ग्राउंड में जो एक मूड हम देख रहे थे, उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी रहेगा इलेक्शन के दौरान जो चल रहे हैं? आज मैं नॉमिनेशन सबमिट किया हूँ, तो नॉमिनेशन सबमिट का दिन में ऐसे भी एक रैली होता है। तो 5 साल नलबारी का जनता के लिए काम किया। आज नॉमिनेशन देने का टाइम में पूरा जनता निकल के आया। जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा होता है। तो हम लोगों ने गॉर्डन फील्ड से हरि मंदिर तक शोभा यात्रा करके गया, उसका बाद हमने जाके नॉमिनेशन दिया। तो
लोगों का जब इतना उम्मीद रहता है, प्यार रहता है, तब हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हमारा ये रहता है कि 5 साल में हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया हूँ नलबारी के लिए, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का उम्मीद बढ़ रहा है, लोगों का आशा बढ़ रहा है, और इतना लोग निकल के आ गया, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा होता है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि इसी जोश से 9 तारीख तक सब लोग काम करें और 9 तारीख पूरे लोग निकल के वोट देने के आ जाए। 100% पोलिंग होना चाहिए। हर युवाओं जितना नया वोटर है सब वोट देना चाहिए। सबको वोट देने के लिए मैं अपील करता हूँ, सब आके वोट दे और मोदी जी का समर्थन में, हिमंत बिश्व शर्मा जी का समर्थन में वोट दें। इस टाइम हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग वोटर्स ऐड हो रहे हैं और एसआर प्रक्रिया के बाद बहुत सारे जो पुराने वोटर्स थे उनके नाम हट गए हैं, तो एक नया वोटर फोर्स आ रहा है पूरे आसाम में। आपके कंस्टिट्यूंसी में भी सेम होगा, तो वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंटेक्स्ट में आपने जो नए 2-3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो आपका मेन क्या मुद्दा बन गया है? जैसे कि आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने देखा है और नया कन्वेंशन सेंटर, डीसी ऑफिस, ये सब क्या मेन आप लोगों का एजेंडा रहेगा कि उसके अलावा भी और कुछ आप लोगों ने सोचा? नया वोटर जो है, फर्स्ट टाइम वोटर, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं जो वो लोग फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए उसको गणतंत्र का ये महोत्सव में उसको शामिल होना चाहिए। तो इसलिए पहले से हम लोग नया वोटर को जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया और इस बार एसआर में बहुत सारे नया वोटर को हम लोग पार्टी का माध्यम से वो लोग को वोट में जोड़ा है, रीच आउट किया है। और कुछ दिन पहले मेरा यहाँ अराउंड 5000 नया वोटर का एक मीटिंग भी हुआ था। तो इस वो लोग का साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था। तब ये पता चला जो लोग चाहता है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करें। विकास होते रहेंगे, डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन वो लोग को ये है जो एम्प्लॉयमेंट के, जैसे हमारा यहाँ अराउंड 800 करोड़ इन्वेस्ट करके एक पेप्सी का कंपनी का फूड प्रोडक्ट का इंडस्ट्री बैठा। ऐसा 2-4 इंडस्ट्री सबका आशा में है, जैसा इंडस्ट्री चाहिए जहाँ हमारा एनरोलमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके। और सबसे बड़ा बात है, बहुत सारे लोगों ने चाहता है जो यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे अच्छा ऐसे हमारा IAS के लिए हो, ACS के लिए हो, या तो इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, ऐसा कुछ अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बने जहाँ से वो लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉम्पीट करने का साहस मिले, वह कॉम्पीट करने का सुविधा मिले। तो इमीडिएटली हम लोगों ने लास्ट ईयर LN का एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हमारा जो यूथ कमीशन का थ्रू हम लोग शुरू किया है। तो गरीब लोगों के लिए ये भी एक अच्छा होगा कि गरीब लोग फ्री बिना मासूल में वहाँ पर कोचिंग ले सकेंगे। तब हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल में ज़्यादा लोग घुसेंगे। इसका अलावा भी हमको सोचना है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है यहाँ, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपके लिए अभी पॉलिटिकल चैलेंज के बारे में बात करते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ के एक जो प्रीवियस MLA है, अभी आपके अपोजिशन में है, कांग्रेस में, वो प्रीवियस भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे और वो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं, हमने उनसे बात किया है कि आपके लिए वो एक बड़ा चैलेंज देंगे और इस टाइम कांग्रेस के साथ मिलके आपको पराजय करेंगे। ग्राउंड में आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या आपको उस चैलेंज स्वीकार है या फिर आप कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? देखिए, आज जितना लोग निकल के आ गया नॉमिनेशन देने के लिए, वही लोग वोट देने से हो गया। ऐसा है चैलेंज का बात ऐसा है। मैं तो ये नहीं सोचता हूँ कि जनता का पास जाना पड़ेगा। 9 तारीख तक हमारा बहुत काम है, सबका पास जाना पड़ेगा, सबका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन आज ऐसा माहौल है जो लोगों का मन में ये है जो लास्ट 5 इयर्स में नलबारी में कुछ ना कुछ हुआ है और मेरा ऊपर वो लोग का उम्मीद भी है जो मैं कुछ कर सकूँगा। तो इसलिए मैं आशा रखता हूँ जो लोगों का जो उम्मीद है मेरा ऊपर, इसमें हमको समर्थन मिलेगा। इसका अलावा भी हिमंत बिश्व शर्मा जी का ऊपर, मुख्यमंत्री जी का ऊपर लोगों का बहुत प्यार है। उसी तरीके से मोदी जी का ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है। तो मैं ये सब मिला के मुझे लगता है जो लास्ट ईयर में हम जैसे डबल इंजन, यहाँ तो डबल ट्रिपल इंजन ट्रिपल भी हो गया है। तो यहाँ उसी सिस्टम में हम लोग निकल के जाएंगे और मेरा लगता है जो लास्ट ईयर से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप यू हैव प्लेड अ बिग रोल इन दी अलायंस। AGP आपके साथ है, BPF भी आपके साथ है। 2-3 चैलेंजेस था, आप लोगों ने डील किया इंटरनली। अभी 2-3 आपकी लीडर्स छोड़ दिया है पार्टी आफ्टर देयर सीट्स वर नॉट, दे डिडंट गेट द सीट्स। सो ओवरऑल अलायंस को आपका कैसे देखते हैं? अलायंस मिलके, BJP मिलके, NDA को आप ओवरऑल एक पिक्चर अगर हमारे दर्शकों को आप दे सकते। देखिए, अलायंस का बात ऐसे हम लोग ने बहुत अच्छा तरीके से अलायंस किया हूँ। जैसे AGP, BJP, BPF
बीजेपी, राभा संघ, ये तीनों अलायंस में मैं थोड़ा सीएम सर का निर्देश से मैं थोड़ा इन्वॉल्व था। तो मुझे लगता है जैसे सबको खुशी करके, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है अलायंस में बहुत सारे बात आता जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते सबको खुशी करके कैसे एडजस्टमेंट कर सके, ऐसा तो बहुत अच्छा से हो गया है। अभी अलायंस का बात हो या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का बात, थोड़ा बहुत को लोगों का तो नाराज़गी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, हमारा टिकट मांगने वाला है अराउंड 1400 है, तो 1400 टिकट मांगने वाला से हम लोग जब 89 को टिकट देंगे तो बहुत सारे लोगों तो डिप्राइव होंगे, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत तो नाराज़गी रहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हो जो किसी का पास ये नाराज़गी ना रहे। तो कल भी मैं बिजनी में था, हमारा एक विधायक का टिकट नहीं मिला, उसको मिलने का बाद वो भी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। परसों दिन मैं बराक वैली में था, वहाँ 3 विधायकों का टिकट नहीं मिला, वो लोग को मिला, वो लोग भी एग्री हो गया काम करने के लिए। एक दो तो ऐसा होता है, जैसे एक मिनिस्टर का बात है और एक एक्स एमएलए का बात है, इसका अलावा तो बहुत बड़ा कुछ है नहीं। तो ऐसे कोशिश कर, सबका इंटरेस्ट आप लोगों ने कैप्चर कर लिया। आप देखिए, हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है देश को सुरक्षा करना, राष्ट्र को सुरक्षा करना, आसाम को सुरक्षित रखना। आसाम को सुरक्षित रखने का कदम में हमारा कुछ लॉस भी हो जाए, जो ये समझता है तो वो बीजेपी का साथ रहता है, जो ये नहीं समझता है जो आसाम को भी बर्बाद हो जाए लेकिन हमको कुछ चाहिए, ये लोग तो हमारा पास कैसे रहेगा। पहला बात है जो आसाम को सुरक्षित करने के लिए जो लोग है, वो जो भी है उसको कुछ नहीं मिलने से भी बीजेपी रहेगा। So this was Jayanta Malla Barua, Minister of Assam and incumbent Nalbari MLA, who is now on ground as the election season takes over in Assam. With video journalist Nishant, this is Nivir reporting for NewsX. And so, Nalbari prepares itself for an intriguing clash. Whether Jayanta Malla Barua reclaims the seat in this closely watched contest remains to be seen. For now, this is all we had in this episode of The Road Stop.